আমাদের লাদাখ ট্রিপের চতুর্থ দিনটা ছিল লাদাখের শেষতম গ্রাম তুর্তুক আর থাং ঘুরে দেখার জন্য। ভারত পাকিস্তানের কাছাকাছি এই গ্রামগুলোতে গেলে মনে হয় যেন ইতিহাসের কোনো এক অধ্যায়ে চলে এসেছি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। গুড মর্নিং ট্রাভেল ফ্রিক্স। আজকে আমার ট্রিপের 4th ডে। এখন বাজে সকাল 8টা। আমরা যাব এখন ব্রেকফাস্ট করতে। এখানে অলমোস্ট সেমই ব্রেকফাস্ট দেওয়া হচ্ছে যেটা আমাদেরকে লেতে দেওয়া হয়েছিল। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা মোটামুটি 9:30 10টা নাগাদ বেরোবো সাইট সিইং করতে। তো আজকে আমাদের প্ল্যান আছে তুর্তুক আর থাং ভিলেজ ভিজিট করার। গতকাল যেহেতু আমাদের এই হোটেলে পৌঁছাতে অনেকটাই রাত হয়ে গেছিলো, তো কালকে তো বাইরেটা দেখাতে পারিনি, তো আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি। নুব্রাতে জনবসতি লে শহরের তুলনায় বেশ কম। সব স্টেগুলোতেই এরকম নিজস্ব বাগান রয়েছে। আজও আমাদের প্রায় 3 ঘন্টার রোড জার্নি ছিল। রুক্ষ পাহাড়ের পাশাপাশি আজ বেশিরভাগ সময়টা আমাদের সঙ্গী ছিল শোক নদী। আজকের এই রোড ট্রিপে আপনি দেখতে পাবেন লাদাখের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্রিজ, যেগুলো থাং এবং তুর্তুক গ্রামকে লে শহরের সাথে কানেক্ট করেছে। দুপুর 1টা বাজে। আমরা আছি তুর্তুক আর থাংয়ের মিডল ভিলেজে ক্যাকশি। তো এখানে চেকপোস্টে আমরা চেকিং হবে, তারপরে আমাদেরকে এগোতে দেবে। এটা হলো এদিকে ভারতের শেষ ব্রিজ। এই ব্রিজ পেরোতেই চোখের সামনে ধরা দেয় পাকিস্তানের কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী। 1টা বাজে আমরা পৌঁছে গেছি থাং। এটা হলো ইন্ডিয়ান নর্দার্ন মোস্ট লাস্ট ভিলেজ। এই থাংয়ের পরেই হলো লাইন অফ কন্ট্রোল, আর তারপরেই হলো পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরের গিলগিট বাল্টিস্তান এরিয়া। এখানে 50 টাকা পার পার্সন হিসাবে দূরবীন ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে, যেটার মাধ্যমে ওই সাইডের পাকিস্তান বর্ডারটা পুরো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, আর ওই দিকের পাকিস্তানের বাঙ্কারগুলোও দেখা যাচ্ছে। এখানে আপনি দূরবীনের মাধ্যমে এলওসি, পাকিস্তানের বাঙ্কার, ইন্ডিয়ান আর্মির বাঙ্কার সবই দেখতে পাবেন। স্থানীয়রা আপনাকে কোথায় কি রয়েছে সে ব্যাপারে খুব সুন্দর করে গাইড করে দেবে। থাং ভিলেজ থেকে বাঙ্কার দেখতে দেখতেই প্রায় 1 ঘন্টা কেটে গেল। তো এখন আমরা যাব তুর্তুক। দুপুর 3টে বাজে আমরা এসে পৌঁছালাম তুর্তুক ভিলেজে। এখন আগে আমরা লাঞ্চ করব, তারপর ভিলেজটা ঘুরে দেখবো। আমরা এই ক্যাফেটায় লাঞ্চ সারলাম। আমরা প্রথমে ভিজিট করব ইয়াবগো রয়্যাল প্যালেস অ্যান্ড মিউজিয়াম। প্রায় 5 মিনিট হেঁটে আমরা পৌঁছালাম ইয়াবগো রয়্যাল প্যালেস অ্যান্ড মিউজিয়ামে। এখানে প্যালেসের পুরো হিস্ট্রিটা লেখা আছে। এটা তুর্তুকের উইমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত। এখানে এন্ট্রি ফি হলো 100 টাকা পার পার্সন। এখানে ইয়াবগো ডাইনাস্টির একজন বংশধর থাকেন, যিনি পুরো প্যালেসটার ব্যাপারে ডিটেলসে বলেন। চলুন ওনার মুখ থেকে পুরোটা জেনে নেওয়া যাক। आप सब लद्दाख घूमने के लाए हो और आप लोगों को पता ही है कि आप लोग लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान पहुंचे। यू आर इन बल्तिस्तान राइट नाउ। हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, वी स्पोक बल्ती लैंग्वेज, हमारा सब कुछ बल्तिस्तानी है, ये आपको पता है ना। तो सिर्फ 4 ही विलेज हमारे हिंदुस्तान में बल्तिस्तान का। इसको हमारा गवर्नमेंट तो स्टेट तो नहीं बना सकता इसको, तो इसको लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जोड़कर रखा हुआ है। जितना भी जो काम होता है रिलेटेड पेपर वर्क्स होता है, जॉब के रिलेटेड काम, जो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर लद्दाख ही है। बट सिर्फ कल्चर ट्रेडिशन यहाँ के लोगों का सब कुछ अलग है, वो आपने देखा होगा तुर्तुक में, है ना। बल्तिस्तान को पहले बल्ती यूज करते थे। बल मीन्स कहते हैं कि रहने की जगह, और ती मीन्स पानी। पानी रहने वाली जगह को बल्ती कहते थे। टिबेटन वर्ड है, क्योंकि
बल्तिस्तान लद्दाख और तिब्बत एक जमाने में एक हुआ करता था। पानी यहाँ बहुत सारा है, आपने यहाँ तो तुमने देखा होगा और पीओके में भी आपने देखा होगा। पीओके में सरतोरो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे वो पानी भी बल्तिस्तान नहीं जाता है। बल्तोरे ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर आपको नजर आएंगे, वहाँ से पानी आता है, वो बल्तिस्तान से आते थे। तो इस हवेली को राजा तुराब खान ने 16 सेंचुरी में समर की 2 मेनू के लिए बनवाया। 3 सेक्शन में बनाया गया, सबसे नीचे खाना बनाने वालों, फैमिली सेक्शन, अभी गेस्ट सेक्शन। गेस्ट यहीं से आते थे जहाँ से आप लोग आया और यहाँ पे मिलते थे और यहीं से वापस जाता था ऊपर से। फिर अभी आपने नीचे जाना है एग्जिट से, तो नीचे वाले जो फ्लोर है वो एक प्राइवेसी में रहते थे, ना गेस्ट मिल पाते थे ना खाने बनाने वालों। जो दरवाजे के ऊपर आपको रेड कलर के क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे, उनमें प्रेशियस स्टोन्स लगी हुई थी, वो सारा पाकिस्तानी आदमी ने निकाला है। एक राइटर है डेनमार्क का, उन्होंने एक बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न तुर्किस्तान। जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया को पहले वेस्टर्न तुर्किस्तान भी कहते थे, या वेस्टर्न तुर्किस्तान या चीनी तुर्किस्तान। वहाँ पे बहुत सारा कबीले हुआ करता था, ट्राइब्स और ट्राइबल्स हुआ करता था। उनके सरदारों का सरदार के नाम यब्गो होते थे। जब ह्यून सांग जब सेंट्रल एशिया गया था तो वहाँ पे प्रिंस तुंग था और प्रिंस तुंग सरदारों का सरदार था, उनका सरनेम यब्गो था, इसीलिए इस डायनेस्टी को यब्गो कहते हैं। उनके जो ट्राइब्स होते उनको कहते थे गज ट्राइब या गाजी कहते थे। यब्गो एक टिबेटन वर्ड से निकलता है, कहते हैं यब मीन्स फादर एंड मीन्स हेड, हेड ऑफ द फादर्स को भी यब्गो कहते हैं। ये फर्स्ट से लेकर 11 जो राजा ये सेंट्रल एशिया में रूल किया है। बट 12 राजा बेगमथाल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ये अफगानिस्तान होकर बल्तिस्तान आए और पूरा बल्तिस्तान को कैप्चर किया। उससे पहले लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत पे एक तिब्बतन राजा एक एपोलहंग दरमा रूल करते थे। यहाँ पे जो बल्तिस्तान तिब्बत का पार्ट हुआ करता था और बल्तिस्तान में बौद्ध और बुद्धिज्म हुआ करता था। तो इसीलिए इस हवेली में आपको बहुत सारा स्वास्तिका का सिंबल्स आपको नजर आएंगे। स्वास्तिक को बोलते लोग युंगडुंग बोलते हैं। युंगडुंग इनका रिलीजियस सिंबल्स हुआ करता था इस्लाम से पहले। 15th सेंचुरी में एक इस्लामिक स्कॉलर आता है अमीर कबीर रहमतुल्लाह, वो इस्लाम को लेके आता है और राजा इस्लाम बनता है। जब राजा इस्लाम बने तो धीरे धीरे जितने भी लोग थे इस एरिया में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। यबगोस्किम खान, बिफोर यबगोस्किम खान, वहाँ से एक होता है कि फर्स्ट बोर्न सन को किंगडम देते और छोटे बेटों को जागीरदार देते थे। यबगोस्किम खान की वाइफ को पसंद नहीं आई। एज पर हर ही डिवाइड हिज किंगडम इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड मेड ऑल सन एज ए किंग। तीनों बेटों को राजा बनाया गया। इब्राहिम खान को सीलिंग की एरिया दिया, यब्गो बेग अमन को केरस की एरिया दिया, यब्गो तुराब खान को छोरबत खपुरी की एरिया दिया। ये जो सीलिंग और केरस अभी पाकिस्तान में पूरा पीओके में, छोरबत खपुरी में सिर्फ 4 ही विलेज हमारे हिंदुस्तान में, बाकी सारा विलेज है पाकिस्तान में। तुर्तुक, चुनंखा, टैक्सी और था तुर्तुक का लास्ट पॉइंट है। तो राजा तुराब खान इन्होंने इस हवेली को 16th सेंचुरी में समर की 2 महीनों के लिए तुर्तुक में बनवाया। तुर्तुक इसलिए बनवाया क्योंकि तुर्तुक जो वर्ड है वो दुख तुक से निकलता है, विच मीन स्टे हियर। जितने भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स आते थे यूज्ड टू स्टे इन तुर्तुक। एक आध दिन के लिए तुर्तुक में रुक जाता था और राजा ने टैक्स लेते थे। टैक्स कलेक्ट करने के लिए तुराब खान ने इस हवेली को तुर्तुक में बनवाया। आप यहाँ तुर्तुक, ये जो मैप है, जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेजों ने बनवाया, जैसे कि कब बन गया था, जब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये लोग कमजोर होते हैं। फिर लास्ट में अली मर्दान खान, इसके टाइम पे डोगलास आता है यहाँ पे। आपको पता है ना, हिंदुस्तान में 2 जगह पे, एक हैदराबाद निजाम में और एक जम्मू एंड कश्मीर पे अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली रूल किया है। यहाँ पे डोगलास होते थे। डोगलास और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रिब्यूट साइन होता है, उसमें ब्रिटिशर्स डोगलास को पावर प्रोटेक्शन देता है और डोगलास ब्रिटिशर्स को टैक्सेस 75,000 रुपीज टैक्स देता है। और ब्रिटिशर्स की मदद से डोगलास यहाँ पे होते थे जम्मू में, ब्रिटिशर्स की मदद से डोगलास के फेमस राजा गुलाब सिंह, उनके एक जनरल थे जोरावर सिंह, वो लद्दाख पे अटैक करते हैं। 1836 में वो लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना लेता है। 1840 में वो गिलगित बल्तिस्तान पे अटैक करता है और पूरा गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना लेता है। अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज यहाँ कभी नहीं आया, यहाँ उन्होंने डोगलास को भेजा और अंग्रेज यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल करते थे। ये पूरा कश्मीर बन गया, इतना बड़ा कश्मीर। जो मैप है जम्मू के, इसमें जो ग्रीन जो पार्ट अभी आपको इस मैप में नजर आ रहा है, ये जो पार्ट, ये अभी पाकिस्तान में, इसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके। इसका जो नाम है गिलगित बल्तिस्तान है। रेड जो पार्ट इस मैप में पार्ट चाइना में, इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। बाकी 45% ही जम्मू एंड कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में और हम यहाँ पे तुर्तुक में। सो बल्तिस्तान का सिर्फ तुर्तुक ही हमारे हिंदुस्तान में, बाकी सारा बल्तिस्तान पीओके। जितने भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स आते थे वो एक आध दिन के लिए तुर्तुक में रुक जाता था और राजा ने टैक्स लेते थे। टैक्स कलेक्ट करने के लिए राजा तुराब खान ने इस हवेली को तुर्तुक बनवाया क्योंकि यहाँ से 4 रास्ता निकलता है। इसीलिए आप यहाँ से और ले से आप खरदोला, खलसर, डिस्किट, हुंदर के आप तुर्तुक पहुंचा।
यहाँ जाता लेह 4-5 दिनों में पहुँचते थे, लेह से आप तिब्बत जा सकते थे। यहाँ जाते तो करगिल, करगिल से आप कश्मीर जा सकते थे, सीधा जाते तो गिलगित होकर अफगानिस्तान। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, लगभग 74 किलोमीटर में फैला हुआ ग्लेशियर यहाँ तुर्तुक तक पहुँचता है। तुर्तुक में उसको गुलाब पोस्ट बोलता है। इसी के बगल में से एक नाला जाता है, उसको बोलते हैं सल्तोर नाला। सल्तोर नाला से काशगार, काशगार से सेंट्रल एशिया। इट वॉज पार्ट ऑफ सिल्क रूट ऑल्सो। इसीलिए राजा तुराब खान ने इस हवेली को तुर्तुक में बनवाया ताकि ट्रेडर्स या मर्चेंट से टैक्स ले पाए। अब जो मनुव्रा वैली एंटर करते हैं तो आपके साथ एक रिवर शयोक रिवर कहते हैं, जो आपके साथ के तुर्तुक से पीओके चल जाता है। इस रिवर को ओरिजिन चाइना कमडाम लेक से आता है, वो शयोक, फिर नुब्रा, फिर तुर्तुक से पीओके। पीओके में एक जगह है केरस, केरस में इंडस रिवर के साथ ये रिवर मिलता है। इंडस रिवर आता है मानसरोवर लेक से, जो तिब्बत में, फिर लेह, ये संगम पॉइंट जो जस्कर रिवर के साथ मिलता है, फिर करगिल और पीओके। सो एक्चुअली शयोक रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसके बाद इस रिवर को इंडस रिवर ही कहते हैं, दरिया सिंधु कहते हैं। ये जो रिवर है इंडस रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसीलिए इस रिवर बहुत सारे ट्रीटीज साइन किया गया जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। बट ये शयोक रिवर है डिवाइड करता है दो माउंटेन रेंज को, कराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज को। कराकोरम रेंज आगे जाके केटू से मिलता है, जिसे हम गोडविन एस्टेन बोलते हैं केटू। अच्छा। फर्स्ट से लेकर 9th कॉइन यहाँ की लोकल राजाओं का है, फिर ब्रिटिश आया, फिर पाकिस्तान, फिर अभी हमारे हिंदुस्तान का। दिस आर द कलेक्शन ऑफ द कॉइन्स। ये जो रिंग राजा के पास होते थे, और राजा मानता को पता चलता था कौन रिप्रेजेंट है। ये पाइप स्मोकिंग के लिए गुलाब पास उसके अंदर ईटे डाल के लड़कियों के ऊपर छीटे जाते थे। और बॉल है जहर मोरा, कुछ पॉइजन डिटेक्टर जैसा है। कोई अगर इसमें पॉइजन डाले तो ये एक रिएक्शन होता है। हाँ, रिएक्शन हो जाता है। तो कौन सा वाला नहीं, ये वाला कलर भी चेंज हो सकता है, या ऑर्डर चेंज होगा, या हीट अप होंगे, तो कुछ ऐसे नहीं से कुछ हो जाएंगे। ये जो राजा अब्दुल्ला खान का वॉकिंग स्टिक है, ये भी आइबेक्स का सींग से बना हुआ है। और यहाँ पे आपको प्रेशियस स्टोन्स आपको नजर आएंगे। ये बो इन ये भी आइबेक्स का सींग से बना हुआ है। ये कर्नल समर इंजन का फोटोग्राफ है, जिन्होंने 1971 में इस एरिया को कैप्चर करने में मदद किया। फिर ब्रिगेडियर शेरजंग थापा, फिर ये जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख और बल्तिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट बनाया गया है। ये टर्बन इसके अंदर यहाँ पे लॉकेट है, इसके अंदर तावीज़ होते थे। राजा मानता था कि नेगेटिव एनर्जी चीज़ों से दूर होंगे। ज्वेल्स, ये शूज़ भी आइबेक्स स्किन और याक स्किन का, पिस्टल्स आपको नजर आएंगे। हिस्ट्री ऑफ बल्तिस्तान है, सवार से ये सारा डिस्प्लेन ऑफ रॉयल फैमिली का फोटोग्राफ नजर आएंगे। ये जो है लेटर पाकिस्तानी हाई कोर्ट पे लिखी गई एक लेटर, इस पे ये घर खाली करने के लिए लिखी गई है। ये लास्ट रूलर का है, ये घोड़े को लगाते इसकी आवाज से जो हाई कोर्ट में केस किया था, लाहौर यहाँ से भेजा गया था वो लेटर। ये घोड़े को लगाते थे, इसकी आवाज से बच्चे से कोई रॉयल फैमिली आ रहा है। ये लाट के लिए शील्ड, ये क्रॉसबो, ये ट्रैप, इसे रियल टेक्सोडोमी ऑफ गोल्डन ईगल। ये स्पीयर से गन स्टैंड, वहाँ पे गन्स है। ऊपर जो सीलिंग से वो खतम्बन है, बल्तिस्तानी खतम्बन है। ये है विंटर के लिए और ये समर के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा धूप में चमकता है कुछ इस तरह से। ये हॉर्स पोलो हमारा ट्रेडिशनल गेम होता है, पोलोस्टिक कुछ इस तरह होता है स्पीयर से। ये बैलेंस है। और ये जो गार्डन, इस गार्डन को चौनिसर बोलता है, विच मीन्स किंग्स गार्डन। इस गार्डन में हर कोई फ्रूट्स पाया जाता है जो बल्तिस्तान में आपको नजर आए, हर कोई फ्रूट्स। সবশেষে গেলাম ডুকনাং, যেটা হলো রান্নাঘর, লিভিং রুম আর স্টোর রুমের কম্বিনেশন। এই ঘরটা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করা হতো। এখানে রাখা বাসনপত্রগুলো কিন্তু সবই রূপোর তৈরি। ব্রিজের এই পারে শুধু প্যালেসটাই ছিল ঘোরার মতো। এখন আমরা ব্রিজের ওই পারে গিয়ে সাইট সিইং করব। এই হলো তুর্তুকের মোটামুটি সাইট সিইংগুলো। প্রথমেই চললাম মনাস্ট্রি দেখতে। মনাস্ট্রিটা তুর্তুকের প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত, আর এই মনাস্ট্রিতে পৌঁছাতে গেলে প্রায় 2 কিলোমিটার ট্রেক করতে হয়। এই চলার পথেই তুর্তুকের প্রকৃত সৌন্দর্য ধরা দেয়। এরকম সরু রাস্তা ধরে ট্রেক করে যেতে হচ্ছে। রাস্তার অবস্থা ভয়ঙ্কর। 45 মিনিটসের ট্রেক করে এখানে পৌঁছালাম। লাস্ট এরকম ট্রেক মনে হয় এলবং আর সান্তুকে করেছিলাম, কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে আসা সার্থক। আমি এবার ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি। মনাস্ট্রি ঘুরে এখন আমরা ব্যাক করছি। এবার অন দ্য ওয়ে খুচখাচ সাইট সিইংগুলো ছিল সেগুলো করতে করতে যাব। এরপর গেলাম বাল্টি হেরিটেজ হাউস এবং মিউজিয়ামে।
এই হলো টিকিট প্রাইস। মিউজিয়ামের জন্য 70 আর ন্যাচারাল কোল্ড স্টোরেজের জন্য 50 আর বাংকারের জন্য 50। हमारा इंसिस्टर का घर है, ये 1880s 1890s का बना हुआ है। 2008 में 18 में हमने इसे म्यूजियम बनाया है, जिसमें इसमें जितने भी है ना आर्टिफैक्ट है, जितने यूटेंसिल है, कुछ 200-250 साल पुराने हैं, कुछ 100 साल पुराने हैं, जो कॉपर और ब्रास के पोर्ट्स वगैरह है सारे इस तरह से। ये हमारे इंसिस्टर का फैमिली का एक घर था। আচ্ছা, ये जो मकान के जो इस साइड में थोड़ा है वो नया है, लेकिन नया ये भी नहीं कि कोई 20 साल 30 साल पुराना नहीं, ये भी 50-60 साल से पुराना ही है আচ্ছা। जी, एक्सटेंड किया हुआ है। लेकिन जो पुराना मेन आपने देखा है वो लगभग 130 साल से ऊपर ऊपर हो रही है। এখানে ছাদগুলো ভীষণ নিচু, পুরো মাথা নিচু করে ঘুরতে হচ্ছে। तो बैंकर मेमोरीज इसलिए कहते हैं कि करगिल वॉर हुआ था ना 1999 में, तो यहाँ पे लोग इसके अंदर शेल्टर ले लेते थे कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर से वहाँ से जो शेलिंग आते थे आर्टिलरी, तो उससे बचने के लिए पहले क्या होता था, यहाँ पे पूरा डैम करा था पत्थर का, तो उसे कहें ना, तो क्या होता था अगर इनके खुदा ना खास्ता कहीं इसके ऊपर शेल गिर गया तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। और ऐसे मिट्टी नॉर्मल मिट्टी पे अगर कहीं गिर जाएगा, मतलब एक रूम साइज इतना, मतलब 7x7 8x8 के इतना बड़ा गड्ढा गड्ढा होता है, আচ্ছা, इतना खटे विशेल आप देखेंगे अंदर इतना मोटा है, तो इसके अंदर छुप जाते थे। पर्टिकुलर जो लेडीज, जो बच्चे, जो बूढ़े बूढ़ी, जो दादा दादी, सारे इसी में शेल्टर ले थे। क्योंकि जो यंग लोग था मैक्सिमम जाते थे वॉलंटियरली वहाँ पे, आर्मी का जो सामान या एमुनेशन को सब सब कैरी करने के लिए हो जाते थे। बॉर्डर से गिरा हुआ शेल ये, আচ্ছা। कितना बड़ा मोटा होता है ये शेल। वही जो यहाँ देखिए बिल्कुल ये बली है, बिल्कुल ऐसे जॉइन कर करके, अगर उसके ऊपर अगर कोई सीधा ब्लास्ट अगर गिर जाएगा वहाँ, ये है वहाँ का गिरा हुआ है। আচ্ছা, इतना बड़ा मोटा है, देख लीजिए इतना थिकनेस है, इतना बड़ा सा होता है इसके साइज का। तो इसके अगर सीधा ऊपर गिर जाए तो ये थोड़ा ऊपर, मैंने कहा था ना पत्थर की डैम करा था, तो सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। इसका दिक्कत ये प्रॉब्लम है, अगर इसके आजू बाजू में अगर कहीं गिर जाएगा कोई 4-5 किलोमीटर में, इंसान को इतना सा काफी है, इतना सा, क्योंकि गरम गरम और ये होता है ना उसमें पॉइजन सा आ जाता है ना, আচ্ছা। ये छतरी बोलते हैं। तो इसे ही छुपा के पूरा जो डंडा देख रहे हैं ना बल्ली, ऐसे ज्वाइन करा के अगर हम पास सामने गिर भी जाएंगे तो ये जो जिग जिग है इसलिए रखा है कि अगर उसके हमारे यहाँ इंटरेस्ट अगर पास गिर गया तो यहाँ छरे अंदर नहीं हो जाएंगे, थोड़ी इसीलिए जिग जिग दरवाजे पास। 4 साल पहले ये जो मोहल्ला यहाँ से जब सेटल हुआ था, तो शायद उन्होंने पहले वो किया होगा कि इस टाइप का है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रूम बनाए हैं, जो जितने भी पेरिशेबल आइटम होता है ना, तो गर्मी में ठीक ठाक गर्मी होता था तो उसको इसमें रखने के लिए। तो अभी भी है ये, क्योंकि इसको रिनोवेट भी नहीं किया है, अब पॉपुलेशन बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज का अभी भी है, जिस तरह हमारा भी है, तो हम इसको आप उनको टूर कराते हैं। इसमें अंदर आप देखेंगे मक्खन वगैरह पेरिशेबल आइटम अभी भी है। जो वुलन ड्रेसेस आपने देखा था ना, वो लगभग 80-90 साल पुराना है, तो इसके कारण बचा हुआ है। नहीं तो होता ना हर कोई बनियान हमारा जो एक सीजन में तो कीड़े पड़ गए, खराब होता है ना, तो इसके कारण बचा हुआ। अंदर भी आप वुलन जो शीट आप देखेंगे, ये सारे वुलन है, वुल के ही सारे कपड़े वगैरह हैं। यहाँ पे देखिए ये बटर पता नहीं 30-35 साल पुराना है, अब तो आप खाते भी नहीं है, अब ये खटा हुआ है, लेकिन बदबू नहीं आता है। मक्खन का स्मेल आ रहा है ना, लेकिन बदबू नहीं आ रहा है, शायद ख़राब हो गया होगा, लेकिन इतना वो जो स्मेल आता है ना, जो बदबू का सड़ा हुआ, इसके कारण ये बचा हुआ है। সন্ধে 6:30 বাজে, আমাদের সাইট সিইং কমপ্লিট। বিচের এদিকে একটা ক্যাফে আছে, তো এখানে আমরা কাশ্মীরি কাওয়া অর্ডার করলাম, ভীষণই টেস্টি খেতে। এখানে হলো ওয়ালনাট দেওয়া আছে আর স্যাফরনের চা, এটা মেইনলি। এখানেই আমাদের প্রায় সন্ধে 7টা হয়ে গেছে, মানে দেরিতে সন্ধে হয়ে বলে এখনও সানলাইটটা আছে, ফিরতে আরও 3 ঘন্টা লাগবে। তো হোটেলে পৌঁছাতে আই থিঙ্ক আজকে রাত 10টা 10:30 বেজে যাবে। রাত 10টা বাজে, এখন এসে পৌঁছালাম আমাদের হোটেলে। তো আজকেও ডিনারে সেম আইটেমই আছে, শুধু আমাদের জন্য স্পেশালি এগ কারি করা হয়েছে। তো কালকে চেক আউট করে আমরা যাব সিয়াচেন বেস ক্যাম্প, দেন ওখান থেকে আমাদের সুমুরে স্টে রয়েছে। আজকের মতো ভিডিও এখানেই এন্ড করছি।